फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ बैंकिंग टिप्स में इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टाफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि जब अकाउंट्स एनपीए हो जाता है तो बैंकों द्वारा स्टाफ अकाउंटेबिलिटी किया जाता है और इसी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी के होने पे हम अपने स्टाफ्स को पनिशमेंट अवार्ड करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कभी कभी जातियाँ होती हैं जिससे कि हमारा वो बैंक ऑफिसर जिसका इंटेंशन बोनाफाइड होता है और बिजनेस डिसीजन लेता है, लेकिन इसके बाद भी उसका इन्वॉल्वमेंट साबित होता है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने न्यू गाइडलाइंस इशूड किया है। सेंटर हैज रिसेंटली इशूड ए यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर एनपीए अकाउंट्स अप टू ₹50 crores. The guidelines will be implemented from 1st April 2022 for accounts turning non-performing assets beginning next financial year, that is from the 1st April 22. अभी बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में हर बैंकों का अलग अलग गाइडलाइंस हैं जिसके जरिए वो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अब यूनिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइंस जारी किया है ताकि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक तरह के गाइडलाइंस जारी हों और उसके हिसाब से स्टाफ अकाउंटेबिलिटी किया जाए। इंडियन बैंक एसोसिएशन, ए की स्टेक होल्डर ऑफ द फ्रेमवर्क, इन ए स्टेटमेंट अनाउंस्ड द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड October 29th advised broad guidelines to be adopted by all public sector bank on staff accountability framework for NPA accounts up to ₹50 crores other than fraud cases. Finance Minister issues broad guidelines of staff accountability rules for bad loans up to ₹50 crores excluding frauds, aim to protect genuine commercial decision. Banks to complete staff accountability within 6 months from account classified as NPA. Past track record implies to be considered while its scrutiny its past record. यानी कि अगर किसी भी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी करते समय स्टाफ के पास्ट रिकॉर्ड को भी देखना जरूरी है ताकि पास्ट में स्टाफ का क्या एक्टिविटीज़ थी, अगर वो ऑनेस्ट रहा है, उसकी वर्किंग अच्छे रहे हों तो इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि बिजनेस डिसीजन कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एडवाइज्ड स्टेट रन लेंडर टू अडॉप्ट ब्रॉड गाइडलाइंस ऑन स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फॉर बैड लोन्स ऑफ अप टू ₹50 crores. Staff accountability framework up to ₹50 crore are aimed to protect the commercial decision taken by bank employees and quicker resolution of vigilance cases, taking into account the past track record of the such staff. With the approval of their boards, lenders may decide on a threshold of ₹10 lakhs to ₹20 lakhs depending on their business size to examine all aspects of staff accountability. Banks have been advised to revise their staff accountability policies based on these broad guidelines and frame the procedure with approval of their respective boards, the Indian Bank Association said in a statement. And these guidelines will be implemented from the 1st April 22. इसके अलावा बैंक ओनरशिप इन हैंड ऑफ कॉरपोरेट नॉट डिजायरेबल, एक्स SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है, allowing corporates to own banks in the country is not desirable due to the likely risk of related party transactions. Former State Bank of India Chairman Rajneesh Kumar said, headed the country's largest lender for 3 years. To me, in a country like India, allowing the corporate houses to own banks is a fraught with great risk. I believe that the license of bank or bank ownership in the hands of corporate is not a desirable thing to do so. जैसा कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि हम प्राइवेट ओनर्स को भी बैंकों को लाइसेंस देंगे, इस बारे में भूतपूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कहा है कि ये रिस्की है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अब इनकी बातों को कितना ध्यान देती है तब ये देखने वाली बात है। और इसके अलावा चलते चलते लास्ट में
customer of Punjab Maharashtra Cooperative Bank. The customer of stressed Punjab and Maharashtra Cooperative Bank will not get up to rupees 5 lakhs insurance cover in the first lot, as the multi-state cooperative banks is under the resolution process. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation in the first lot will pay customer of 20 stressed of banks except PMC Bank. For the first lot, for the mandatory 90 days period concludes on November 30. यानी कि पीएमसी बैंक के पहले 20 ऐसे स्टेट्स कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनके पैसों की भरपाई कस्टमर को पहले डीएससीसी करेगा और उसके बाद पीएमसी बैंक का नंबर आ सकता है। यानी फर्स्ट लॉट में पीएमसी बैंक के जो कस्टमर हैं, डिपॉजिटर हैं, उनको डीएससीसी का कवरेज का जो 5 लाख का लिमिट है उसका लाभ अभी नहीं मिलने जा रहा है। फ्रेंड्स, दीज आर द बैंकिंग अपडेट्स। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।